नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजपाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजपाल अकेडमी पे। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन के साथ साथ हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस से जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के पिछले वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की एनालिसिस ऑफ सॉइल माइक्रोबियल बायोमास कार्बन के बारे में। इस वीडियो का आपके द्वारा बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो दोस्तों, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि माइक्रोबियल बायोमास कार्बन के साथ साथ सॉइल माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन और सॉइल माइक्रोबियल बायोमास फास्फोरस के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। तो इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे एनालिसिस ऑफ सॉइल माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस की जानकारी आपको टाइमली मिलती रहे। सॉइल माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन में आज हम चर्चा करेंगे माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर होता है, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि एनालाइज सैंपल के अंदर आप माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन का किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। और आज जिस मेथड के प्रिंसिपल की हम बात करेंगे दैट मेथड वाज डेवलप्ड बाय ब्रुक्स एंड कोवर्कर्स इन 1985। So, according to Brooks and his co-workers, the microbial biomass is an important component of the soil organic matter that regulates the transformation and storage of nutrients. Means, जो भी microbial biomass soil के अंदर पाया जाता है, it plays a crucial role in transformation and storage of the nutrients present into the soil. It is the labile component of the soil organic matter, containing the 1 to 3% of total soil organic carbon, 5% of total soil nitrogen, and up to 2 to 3% of total phosphorus present into the soil. The microbially mediated processes affect on ecosystem functions associated with the nutrients cycling, global carbon, nitrogen and phosphorus change, and soil organic matter turnover. यानी कि जो भी processes which are microbially mediated, they plays a crucial role in carbon, nitrogen and phosphorus cycles in the soil. And the respiration rate of soil samples fumigated with the chloroform, initially they have the less value as compared to the non-fumigated samples, but as the time proceeds, the fumigated samples have the higher rate of respiration as compared to the non-fumigated samples. The mineralized carbon, nitrogen and phosphorus, which is mineralized by the microbes into the soil, are analyzed in the fumigated samples and the non-fumigated samples. And the method which is developed by the Brooks et al. And other workers for the microbial biomass carbon, nitrogen and phosphorus include the rapid and more precise estimation of the microbes mineralized carbon, nitrogen and phosphorus into the soil. So friend, ये था इसका प्रिंसिपल कि माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन का क्या प्रिंसिपल होता है, जो मेथड ब्रुक्स एंड कोवर्कर्स ने डेवलप किया था। दिस वाज द प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे कि किन किन रिएजेंट्स की आपको माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ती है। सो रिएजेंट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो रिएजेंट्स में सबसे पहला रिएजेंट चाहिए होता है हमें क्लोरोफॉर्म। The second reagent which is required for microbial biomass nitrogen is 2 molar potassium chloride solution. And to prepare the 2 molar potassium chloride solution, dissolve 150 grams of potassium chloride. That should be the active reagent grade, or if you are having GR grade, whatever you are having in your laboratory, active reagent grade का potassium chloride 150 gram of potassium chloride dissolve in 700 ml of distilled water and then dilute it to the 1000 ml with the same distilled water. The third reagent which is required is 0.05 molar sulfuric acid solution, and to prepare the 0.05 molar sulfuric acid solution, dissolve 1.4 ml of concentrated sulfuric acid
in 1000 ml of distilled water. The fourth reagent which is required is boric acid with 2% concentration. And to prepare the boric acid of 2% concentration, dissolve 20 grams of boric acid in 500 ml of hot distilled water. ये आप ध्यान रखेंगे, बोरिक एसिड जो होता है वो हॉट डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ही डिजोल्व होता है, कोल्ड वाटर के अंदर बोरिक एसिड डिजोल्व नहीं होता है। तो आप 500 ml डिस्टिल्ड वाटर विच शुड बी हॉट, उसमें इसको डिजोल्व करेंगे एंड देन ऐड दी 20 ml ऑफ मिक्स इंडिकेटर एंड देन एडजस्ट दी पीएच एट 4.5 एंड डाइल्यूट इट टू दी 1000 ml विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो बोरिक एसिड बनाने के लिए आपके पास में तीन चीजें हैं। सबसे पहले 20 ग्राम्स ऑफ बोरिक एसिड को हॉट डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप डाइल्यूट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे एंड देन उसके अंदर 20 ml ऑफ मिक्स इंडिकेटर आप डालेंगे। मिक्स इंडिकेटर डालने के बाद में 4.5 पे इसका पीएच एडजस्ट करेंगे और फिर इसका 1000 ml आप वॉल्यूम मेकअप करेंगे। मिक्स इंडिकेटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिजॉल्व 0.066 ग्राम्स ऑफ मेथिल रेड and 0.099 grams of bromocresol in about 100 ml of ethanol, स्टाइल एथेनॉल जिसको आप एथेनॉल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, उसके अंदर इसको जो है आप डिसॉल्व करेंगे। अगला जो रिएजेंट हमें चाहिए होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके लिए आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर लेंगे और इस पाउडर को जो है वो आप यूज करने से पहले ओवन के अंदर जो है इसका मॉइस्चर रिड्यूस करेंगे। लास्ट रिएजेंट जो हमें चाहिए होता है वो होता है देवोर्दा सलाई। आजकल मार्केट में दी रेडी देवोर्दा सलाई भी आपको मिलता है। इफ यू आर नॉट हैविंग दी रेडी देवोर्दा सलाई, इन दैट केस आप कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक को 50%, 45% एंड 5% के रेशियो में लेकर के और देवोर्दा सलाई आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे रिएजेंट जिनमें क्लोरोफॉर्म चाहिए होता है, 2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड चाहिए होता है, 0.05 मोलर नॉर्मल, सॉरी इट्स नॉट मोलर, 0.5 नॉर्मल H2SO4 चाहिए होता है, देन बोरिक एसिड 2% कंसंट्रेशन का चाहिए होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए होता है और लास्ट में आपको जरूरत पड़ेगी देवोर्दा सलाई की। तो ये थे दोस्तों रिएजेंट। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन एनालिसिस के लिए फॉलो करना है। तो प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो प्रोसीजर के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट है एक सैंपल्स को हमें फ्यूमिगेट करना है, दूसरे सैंपल को हमें नॉन फ्यूमिगेटेड सैंपल्स के रूप में यूज करना है। सो सबसे पहले हम करेंगे एक सेट ऑफ सैंपल्स का फ्यूमिगेशन एंड फॉर दैट पर्पस टेक 10 ग्राम्स ऑफ फ्रेश सॉयल इन 2 सेट्स। मैंने आपको शुरू में बताया 2 सेट्स लेने हैं, एक सेट को वी विल यूज एज ए नॉन फ्यूमिगेटेड एंड अदर सेट विल बी यूज एज फ्यूमिगेटेड सैंपल्स। देन फर्स्ट सेट विल बी यूज फॉर द फ्यूमिगेशन and for fumigation transfer 10 gram of fresh soil in 50 ml beaker, then keep the beaker in the vacuum desiccator. After keeping the vacuum soil samples in a vacuum desiccator, put a beaker containing 50 ml of chloroform in the center of the same desiccator and then perform the vacuum suction and leave it for the overnight. Means आपको 10 ग्राम ऑफ फ्रेश सॉइल लेनी है। इस सॉइल को लेकर के इस सॉइल में आपको क्लोरोफॉर्म से इनको फ्यूमिगेट करना है। क्लोरोफॉर्म से फ्यूमिगेट करने के लिए 10 ग्राम फ्रेश सॉइल लेंगे एक बीकर में, उसको आप डेसिकेटर के अंदर रख देंगे। डेसिकेटर में रखने के बाद में डेसिकेटर के सेंटर में एक बीकर में जिसमें 50 ml क्लोरोफॉर्म होगा वो लेकर के रख देंगे और फिर वैक्यूम पंप की सहायता से इसके अंदर सक्शन क्रिएट करेंगे ताकि जो क्लोरोफॉर्म है वो सभी सॉइल सैंपल्स को फ्यूमिगेट कर देगा। फ्यूमिगेट करने के बाद में आप इसको ओवरनाइट रख देंगे। ओवरनाइट रखने के बाद में अगले दिन आकर के आप उसका वैक्यूम रिलीज करेंगे, फिर उसका बैक सक्शन करेंगे ताकि उसमें जो एक्सेस क्लोरोफॉर्म का कंटेंट करे जो भी मात्रा होगी वो बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट डे इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्योंकि आप फ्रेश सॉइल ले रहे हैं तो फ्रेश सॉइल ले रहे हैं तो उसको आपको वेट भी निकालना है। वॉल्यूम बेसिस पे आप फ्रेश सॉइल ले रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फ्रेश सॉइल जो आप लेकर के सेम फ्रेश सॉइल का एक और मात्रा लेकर के और उसको आप जो है हॉट ओवन के अंदर रख देंगे ताकि उसका जो है मॉइस्चर कंटेंट आप देख सके। उसके लिए क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर को आप वेट करेंगे, उसके अंदर आप सॉइल ऐड करेंगे। सॉइल ऐड करने के बाद में फ्रेश सॉइल वेट लेंगे अलोंग विद द बीकर, देन उसको आप ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में
आप उसको फिर बाद में अगले दिन जब वो कांस्टेंट उसका वेट आ जाएगा तब उसका वेट ले लेंगे, एंड देन जो कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला होता है फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका मॉइस्चर परसेंट। तो इससे आप इसका मॉइस्चर परसेंट निकाल लेंगे तो वॉल्यूम बेसिस पे आपकी जो सॉइल का वो वेट आ जाएगा। ये हम क्यों करते हैं, कैलकुलेशन के टाइम पे हमें एग्जैक्ट वेट ऑफ सॉइल चाहिए होती है। तो आपने वैक्यूम डेसिकेटर की सहायता से इसके अंदर जो है फ्यूमिगेटेड सैंपल्स में आपने क्लोरोफॉर्म से फ्यूमिगेट कर लिया। नेक्स्ट ये व्हाट यू विल डू, ट्रांसफर द फ्यूमिगेटेड एंड नॉन फ्यूमिगेटेड सैंपल्स सेपरेटली इन ए 250 ml conical flask and then add 100 ml of 2 molar potassium chloride solution जो आपने तैयार किया था, and then shake it for 1 hour। तो सॉइल के अंदर आपने फ्यूमिगेशन कर लिया है। फ्यूमिगेशन के बाद में फ्यूमिगेटेड और नॉन फ्यूमिगेटेड सैंपल्स को सेपरेटली आपने 250 ml के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर लिया। देन उनके अंदर आपने सेपरेटली 100 ml 2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया है। फिर उसके बाद आपने उनको शेक किया, एंड शेक करने के बाद में लीव द सस्पेंशन अंटिल इट इज सेटल डाउन, मींस आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाएगा, एंड देन फिल्टर इट विद द हेल्प ऑफ वाटमान नंबर 42 फिल्टर पेपर। और फिल्ट्रेट जो आएगा उसमें से आप 10 ml एलिकोट जो है वो पिपेट आउट करेंगे और इसे ट्रांसफर करेंगे 250 ml की डाइजेशन डिस्टिलेशन ट्यूब के अंदर। और फिर इसके बाद में आप करेंगे इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड करेंगे और उसके अंदर अमोनिकल नाइट्रोजन एनालिसिस जो है वो आप परफॉर्म करेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो एलिकोट आपने लिया उसके अंदर अमोनिकल नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे। तो प्रोसीजर में अभी तक हमने क्या किया कि एलिकोट को जो है वो ट्रांसफर कर लिया। अब उस एलिकोट के अंदर हम अमोनिकल नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे, और वो किस प्रकार से करेंगे। फॉर अमोनिकल नाइट्रोजन एस्टिमेशन, ट्रांसफर द 10 ml ऑफ एलिकोट इन 250 ml ऑफ डाइजेशन डिस्टिलेशन ट्यूब, add 1 gram of magnesium oxide and then start distillation with the Geldahl unit। Geldahl unit का यूज करके डिस्टिलेशन करेंगे। इस Geldahl यूनिट में अटैच ए बीकर कंटेनिंग दी 20 ml ऑफ बोरिक एसिड। ये जो 2% बोरिक एसिड आपने तैयार किया था विद 4.5 pH, ये आप अटैच करेंगे, एंड देन इसके अंदर जो है वो आपका बोरिक एसिड से जो भी अमोनिया रिलीज होगी दैट विल रिएक्ट विद दिस बोरिक एसिड, एंड देन टाइट्रेट दिस बोरिक एसिड अगेंस्ट दी 0.05 नॉर्मल H2SO4 जो आपने तैयार किया था। तो ये प्रोसेस हो गया अमोनिकल नाइट्रोजन एस्टिमेशन का। आफ्टर मेजरिंग द अमोनिकल नाइट्रोजन, ये सेम डिस्टिलेट में हम वी विल नॉट चेंज द डिस्टिलेट, जो एलिकोट लेंगे वो एलिकोट चेंज नहीं होगा। इसी एलिकोट के अंदर जो है हम नाइट्रेट नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड 1 ग्राम ऑफ देवर्दस सलाई इन सेम डिस्टिलेट, यानी कि जो एलिकोट यहां लिया था, ऐड 1 ग्राम ऑफ देवर्दस सलाई एंड देन परफॉर्म द डिस्टिलेशन, अगेन अटैच द फ्रेश बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड नहीं होगा बिकॉज यहां हम ऑलरेडी टाइट्रेशन कर चुके हैं। सेपरेट कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगेन वी विल टेक द 20 ml ऑफ बोरिक एसिड, एंड देन ये बोरिक एसिड यहां अगेन इट विल रिएक्ट विद दी जो भी अमोनिया रिलीज होगी, एंड देन उसको फिर से अगेन वी विल टाइट्रेट विद दी 0.05 नॉर्मल H2SO4। तो दोस्तों ये था इसका प्रोसीजर, किस प्रकार से आप जो है माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो एनालाइज सैंपल्स हैं, जो रीडिंग्स आपने ली है टाइट्रेशन के थ्रू, उनमें आप माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन का किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन की यदि हम बात करें तो सॉइल माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन is equal to extractable nitrogen, that will be the ammonical nitrogen, and nitrate nitrogen in fumigated samples minus extractable nitrogen, that is the nitrate nitrogen and ammonical nitrogen in non-fumigated samples divided by the Kn. Kn is the coefficient, extractant coefficient है, इसकी वैल्यू आप 0.50 लेंगे। अब आती है बात कि ये एक्सट्रैक्टेंट नाइट्रोजन आप कैसे निकालेंगे। तो माइक्रोबियल बायोमास कार्बन के दौरान जब मैंने एनालिसिस कैलकुलेशन बताई थी तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर ये y की वैल्यू क्या होती है, ये x की वैल्यू क्या होती है।
तो आज हम आपको बताते हैं कि y और x की वैल्यू आप कहां से लेंगे। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्टेबल जो नाइट्रोजन है वो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सॉइल सैंपल्स है, बिकॉज वी आर टेकिंग द फ्रेश सॉइल, तो उसमें सबसे पहले सॉइल में मॉइस्चर परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। एंड टू कैलकुलेट द मॉइस्चर परसेंटेज, weight of wet soil minus the weight of dry soil divided by the weight of dry soil into 100, तो इससे आपका परसेंट मॉइस्चर आ गया। देन वेट इक्विवेलेंट x जो वैल्यू आपकी आ रही है, वेट इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ वेट सॉइल इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस मॉइस्चर परसेंट जो आपने यहां से कैलकुलेट किया, तो इससे जो x फैक्टर है आपका वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द एक्सट्रैक्टेड सॉइल, जो वॉल्यूम कितना आ रहा है y, दैट इज द y, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट सॉइल वेट माइनस ड्राई सॉइल वेट प्लस एक्सट्रैक्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम आपने 100 ml KCl लिया था वो एक्सट्रैक्टेंट का वॉल्यूम यहां आएगा। उसके बाद में आप एक्सट्रैक्टेबल नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड ब्लैंक रीडिंग माइनस टाइट्रेट जो हमारा सैंपल है उसकी रीडिंग, ब्लैंक माइनस ट्रीटमेंट इनटू 0.05, दैट इज दी योर वे जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 था। एंड देन 14 इज दी नाइट्रोजन का जो है आपका वेट होता है, मोलिकुलर वेट, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000। 10 कहां से लिया आपने, 10 जो है वो हमने 10 ml एलिकोट ट्रांसफर किया था, और चूंकि माइक्रोग्राम में हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फाइनली हमारा एक्सट्रैक्टेबल नाइट्रोजन इन फ्यूमिगेटेड और नॉन फ्यूमिगेटेड सैंपल्स जो है उसके अंदर एक्सट्रैक्टेड नाइट्रोजन इंटू माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर y इंटू x करेंगे, तो इससे आपका एक्सट्रैक्टेबल नाइट्रोजन आ जाएगा। तो ये था दोस्तों कैलकुलेशन, जिसमें आप सबसे पहले मॉइस्चर परसेंट कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद में वेट इक्विवेलेंट निकालेंगे, वेट इक्विवेलेंट निकालने के बाद में जो टोटल वॉल्यूम आपने यूज किया वो टोटल वॉल्यूम आएंगे। ये दोनों फैक्टर निकालने के बाद में आप एक्सट्रैक्टेबल जो नाइट्रोजन है वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए आप ब्लैंक माइनस ट्रीटमेंट into 0.05 concentration of H2SO4, then 14 is the molecular weight of nitrogen divided by the 10 into 1000, चूंकि माइक्रोग्राम ले रहे हैं तो हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 10 जो वो हमने एलिकोट का वॉल्यूम लिया था, और लास्ट में फिर हमने इसमें निकाल देंगे कि ये जो एक्सट्रैक्टेबल नाइट्रोजन आई उसको जब हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां से फिर हम इसको एक्सट्रैक्टेबल नाइट्रोजन इन फ्यूमिगेटेड माइनस नॉन फ्यूमिगेटेड डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट करेंगे, तो ये हमारा माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों इसकी कैलकुलेशन। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपके साथ चर्चा की एनालिसिस ऑफ सॉइल माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन के बारे में। हमने आपको बताया माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, और लास्ट में हमने आपको बताया कि एनालाइज सैंपल के अंदर आप किस प्रकार से माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए, फार्मर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।